Good morning, ma'am. Good morning. Good. Sorry, Sachin. Yes, ma'am. Abhyuday, good morning. Not connected to audio or video. Let everyone come. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Abhyuday. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Ajit. Let everyone come, huh? Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning, Harsh. What? Where did we? Ma'am, it is history or civics? Beta, it is geography. Okay, ma'am. Okay. New chapter is of minerals and resources, right? Yes, ma'am. So we'll start. Ma'am, today I will read. Okay. Wait a second. Fine. Let everyone come inside. And by the time I'm sharing the screen with you, can you see the screen? Yes, ma'am. What is it showing? Ma'am, WhatsApp WhatsApp. end-to-end encrypted. Good morning, ma'am. Good morning, Kartikeya. ये बारिश हो गई इस वजह से मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है कुछ। हाँ, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Ma'am, बहुत. बहुत बहुत ज्यादा दे रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए here we go with the PPT. PPT नजर आ रही है आपको? कुछ दिख रहा है बेटा? Ma'am, what? पावर Yes, पॉइंट ma'am. दिख रहा है? नहीं मैम, अभी तो सिर्फ WhatsApp ही दिख रहा है. अरे भाई, स्टॉप शेयर स्क्रीन। बेटा 1 मिनट दे रहे हैं।
Ma'am, we have book. We have the book. Keep your books Yes, open ma'am. and Ma'am, which subject? beta geography. Geography. Can you see Okay, the ma'am. screen now? Can you see the screen now? Yes, ma'am. Now Yes, it is. ma'am. Yes, ma'am. Visible completely? Yes, ma'am. ये Yes. new chapter? हाँ, मिनरल्स एनर्जी। बेटा वो चैप्टर तो हमारा एग्रीकल्चर तो कब का खत्म हो गया ना बच्चे? Yes, ma'am. चलिए fine. So this chapter is about minerals and energy resources. I think this is something that you have already done in class 8th also. Somewhat in your Yes, class ma'am. 5th also. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We have done. So in this class Ninth also. 9th also. No, 9th में minerals कुछ नहीं था. No. Nothing related to mineral was there. Science में पढ़ा होगा. Yes, ma'am. There was nothing. Non-metals. related to Ma'am, it. अभी उदय का syllabus Ma'am, अलग but था. the chapter is mixed with another chapter. This chapter. Like which chapter it is mixed with? Ma'am, I forgot the chapter name. चलिए कोई बात नहीं. Ma'am, other syllabus. Other तुमने syllabus. क्लास 10th का पढ़ लिया होगा 9th में. ठीक है भाई हर्ष. ओके ओके कूल. चलिए I think we have 11 students in the class, right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो बस आप हमें Yes, ma'am. give me just 1 minute so that I can mark you all present and call you one by one to read, right? Today is Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. ma'am. we have Ajit, we have Sachin, we have Abhyuday, then we have Aryan Maurya, we have Ayush Sengar, then we have तो गड़बड़ हो गया. ठीक है और कौन है हमारे क्लास में 1 2 3 4 5 हो गए. Ma'am, Bhumika. हर्षवर्धन, देन हर्षवर्धन सिंह तोमर, फिर लवलेश सॉरी, Yes, ma'am. फिर कार्तिकेय, Yes, ma'am. भूमिका, सचिन भी हो गए, भूमिका हो Yes, गई, ma'am. जैनब. ठीक है जैनब. Present, ma'am. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राइट. फाइन. चलिए लेट अस हैव आर्यन मौर्य रीडिंग. Ma'am, me. आर्यन मौर्य. Ma'am, me. Ma'am, me. आर्यन मौर्य नहीं है क्लास में. शैल आई रिमूव यू? आर्यन नहीं, मौर्य आर यू ma'am. देयर और नॉट? आर्यन मौर्य है ही नहीं. चलो जैनब आप पढ़ो बेटा. Okay. निकाल लो ये क्लास. Mineral. A हाँ homogeneous, naturally occurring substance with a definable internal structure. They are found in varied forms in nature. Rocks are combinations of minerals. Particular minerals. Ma'am, 1 second. A particular minerals that form from a certain combinations of elements depends upon the physical and chemical conditions under which the material forms. Because of its Good morning, ma'am. these different minerals have different color, hardness, crystal forms, cluster, and density. फाइन. मैम हमें PPT से पढ़ना है. आप पीपीसी से पढ़ लेते उसके बाद फिर क्योंकि बुक में भी एग्जैक्टली यही सब दिया हुआ है. ठीक है. Okay, ma'am. पीपीटी में थोड़ा एक इंटरेस्टिंग वे हो जाता है ऑफ लर्निंग. तो अभी हम एक्सक्लूसिवली रीडिंग करेंगे. इसमें से जो चीज को समझना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. अभी आप एक्सक्लूसिवली इसको पढ़ लो केवल. चलिए मैम नेक्स्ट. 2 स्टूडेंट्स और आ गए. हाँ लक्ष्य और ऋषिका हमें पता है बेटा. ओके. Excuse me, ma'am. हाँ बेटा.
Ma'am, I got disconnected and ma'am, now it is not showing the screen. तो कैसे दिखेगा आपको? स्टॉप शेयर कर देते हैं, फिर दोबारा से शेयर कर लेते हैं स्क्रीन, ठीक है? Yes, ma'am. नाउ इट इज शोइंग. It is just showing started screen sharing, but ma'am, screen is not visible yet. To everyone screen is not visible. मैम Ma'am, विजिबल. it is visible. Ma'am, visible. चलो ठीक है, नेक्स्ट लक्ष्य रीड. Minerals are usually found in ores. Ma'am, what is this, ma'am? जी बेटा क्या कह रहे हैं आप? Ma'am, हाँ, ma'am, this word, ma'am, minerals are usually जनरली found in ओर्स. ores, ओर्स sir. क्या होते हैं? ओर्स क्या ma'am, होते in हैं? the ore. Ma'am, in the ore. ओर्स बेटा, ओर्स. क्लास 8 में हमने Minerals generally क्या होते हैं ये ओर्स? क्या होते हैं? व्हाट आर ओर्स? Ma'am, mixture of minerals. बताओ भाई. दे आर व्हाट? मिक्सचर ऑफ Different substances. Ma'am, mixture of grains. है बेटा, दोबारा बताओ. Ma'am, mixture of grains. बेटा ओर्स जो होते हैं वो आपके रॉक्स होते हैं जिनके अंदर मिनरल्स, मिक्स्ड मिनरल्स होते हैं, जिनके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं. जैसे अगर हम रॉक्स की बात करते हैं, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा है कि रॉक्स जो हैं वो 3 तरीके की होती है. इग्नियस होती हैं, प्राइमरी होती हैं, सेकेंडरी होती हैं, सॉरी, और आपकी मेटामॉर्फिक होती हैं. या ये कह लो इग्नियस, सेडिमेंट्री और आपकी मेटामॉर्फिक, है ना? Yes, three mains. ठीक है, ये 3 मेन रॉक होती हैं. जो आपकी इग्नियस रॉक होती है वो तो आपकी लावा जो होता है, मोल्टन मैग्मा जो होता है, जब वो ठंडा हो जाता है जमीन पे आके आके लावा के रूप में, जब वो ठंडा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो इग्नियस रॉक बन जाती है. ठीक है. और हमें ये भी पता है कि जो ये मैग्मा निकल के आता है, ये नीचे से निकल के आता है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर से, नीचे से. यस और नो? yes, ma'am. And rocks from which matter can be Yes, taken. ma'am. ठीक है. तो अब हमें ये भी पता है कि जो हमारा क्रस्ट, मेंटल और कोर है, इसमें अलग अलग मिनरल्स की कंपोजिशन है कि नहीं है भाई? सिलिकॉन है, Yes, ma'am, है. आयरन है. Yes, ma'am. ठीक है. तो कह रहा है कि अब जब ये रॉक्स जो हैं, ये ओर्स जो होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं? ये वो रॉक्स होते हैं जिनके अंदर कुछ मिनरल के कंपोजिशंस पाए जाते हैं. ठीक है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. Now, minerals are usually found in ores. Minerals generally occur in these forms. कह रहा है कि वो जनरली ओर्स में पाए जाते हैं. ओर्स क्या होती हैं? वो रॉक्स होती हैं जिनके अंदर मिनरल्स के कंपोजिशन पाए जाते हैं. ठीक है, केमिकल कंपोजिशंस क्या शायद. तो मिनरल्स जनरली अकर्स इन दीज फॉर्म्स. अब ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? दैट लेट अभ्युदय रीड. अभ्युदय ठीक से पढ़ना बेटा, फुल स्टॉप पे पॉज करिए, कॉमा पे पॉज करिए. ठीक है. Okay, ma'am. हाँ. Minerals are usually found in ores. Minerals generally occur in these forms. First, in igneous rocks, they occur as cracks, crevasse, faults, or joints. Smaller occurrences are called veins, and larger ones are called lodes. Second point, in sedimentary rocks, minerals occur as beds or layers. Third, another mode of formation is when only mass of weathered material containing ores remain. Fourth, some minerals occur as alluvial deposits in sands of valley floors and hill bases. Fifth, ocean water and ocean beds also contain minerals.
ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, क्योंकि हमारे पास 3 तरीके की अलग अलग रॉक्स होती हैं, तो कह रहा है कि इग्नियस रॉक्स जो होती हैं उनके जो क्रैक्स होते हैं, जो फॉल्ट्स होते हैं या जो क्रीविसेस होती हैं या जो जॉइंट्स होते हैं, उनके वेन्स जो होते हैं, जो स्मॉल अक्रेंसेस होती हैं उन वो वेन्स कहलाती हैं, और जो लार्ज होती हैं उनको लोड्स कहते हैं। तो कह रहा है इनके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। देन सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि नेचुरल ऑयल और गैस जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, ओशन बेड से ही तो मिलता है। Yes, ma'am. तो वो ये कह रहा है कि जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो, क्योंकि उनका डिपोजिशन जो होता है वो रिवर बेड्स पे होता है और लेयर्स में होता है, तो इस वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसके अंदर मिनरल्स जो हैं वो इन लेयर्स या उन रिवर बेड्स पर पाए जाते हैं या ओशन बेड्स पर ये पाए जाते हैं। कह रहा है अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन is when only mass of weathered material containing ores remain। कह रहा है कई बार क्या होता है, जो weathered material मतलब weathered मतलब टूटा हुआ जो रॉक्स होती है उनके अंदर भी जो है कुछ केवल रॉक्स रह जाती हैं, तो उनके अंदर भी जो है आपको मिनरल्स की फॉर्मेशन, क्योंकि रॉक्स के अंदर होते ही हैं मिनरल्स, अलग अलग रॉक्स में अलग अलग वो पाए जाते हैं ना, जैसे क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट, फिर आपका मार्बल, ये सब अलग अलग वही तो हैं, रॉक्स के कंपोजिशंस ही हैं, और इनके अंदर अलग अलग जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक, फिर कह रहा है सम ऑफ द मिनरल्स दे अकर इन द एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स कहाँ पाए जाते हैं ये आपके क्लास, एलुवियल डिपॉजिट्स कहाँ पाए जाते हैं? मैम इन alluvial soil, एलुवियल डिपॉजिट्स, मैम इन माउंटेन। alluvial hills, एलुवियल सॉइल मैम माउंटेन alluvial में मिलती हैं, हैं? मैम नदन प्लेन्स, मैम नदन मैम प्लेन्स। alluvial hills, यस, कह रहा है सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड हिल बेसिस। कह रहा है एलुवियल डिपॉजिट जो होते हैं, हम सबको पता है नदी के पानी के साथ ऊपर से जो इरोजन होता है पहाड़ों में, जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं, जो सेडिमेंट्स निकलते हैं, वो सेडिमेंट्स पानी के साथ बह के नीचे जमीन पर आ जाते हैं, और जब वो प्लेन्स में आते हैं तो रिवर बेड्स के साइड्स में जो है ये डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कह रहा है एलुवियल डिपॉजिट जो आपको वैली फ्लोर्स या हिल बेसिस पे मिलते हैं, उन एलुवियल डिपॉजिट्स में भी सब कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया हमारा, ठीक है। देन ओशन वाटर एंड ओशन बेड्स आल्सो कंटेन मिनरल्स। कह रहा है ओशन वाटर जो होता है, समुद्र का पानी जो होता है, और ओशन बेड जो होते हैं वहां पे भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। Yes. यस मैम। चलिए नेक्स्ट, कैन वी हैव Ayush Sengar reading? yes ma'am, the total value of Volume, working mineral, बेटा वॉल्यूम लिखा है the तो। total sorry ma'am, the total volume of working mineral deposit is only 1% of Earth's crust. The geophysically process of Geologically, mineral the geological process process of minerals re, replenishment are indefined, small infinite, small, infinite very small small in comparison to to the present rate of consumer consumption. Consumption. Hmm. The mineral resources are therefore non-renewable, Hmm. Continued continuing to extraction excess of ores. all lead to increased cost as millers come for greater deep along with decrease in quality. रुको रुको आयुष, आप रुक जाओ, आप रुको। कार्तिकेय भट्ट, Yes ma'am. read from the beginning. The total volume of workable minerals. Okay ma'am.
The total volume of workable mineral deposits is only 1% of the Earth's crust. The geological process of mineral replenishment are infinitely small in comparison to the present rates of consumption. Mineral resources are therefore non-renewable. Continued extractions of ores led to increasing mm, cost as mineral extraction comes from greater depths along with the decrease in quality. A, concern, a concerted effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner. Improved technologies need to be constantly involved to allow use of low-grade ores at low cost. Recycling of metal using scrap metals and other substitutes are steps in conserving our mineral resources for the future. ठीक है, चलिए इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, हमें ये पता है कि जो मिनरल्स हैं दे आर फाउंड इन 3 कैटेगरीज. एक होते हैं मेटालिक मिनरल्स, एक होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स. राइट क्लास? Yes, ma'am. ठीक है. और दूसरे होते हैं एनर्जी रिसोर्सेज. ये जो हमारे मेटालिक मिनरल्स होते हैं दे आर फाउंड इन 3 टाइप्स. एक कुछ फेरस होते हैं, कुछ नॉन फेरस होते हैं, कुछ प्रीशियस होते हैं. अगर हम फेरस की बात करते हैं तो फेरस मिनरल्स जो होते हैं उनके अंदर आयरन होता है. ठीक है, ठीक. Okay. और नॉन फेरस जो होते हैं उसमें आयरन का कंटेंट मिसिंग होता है. और जो प्रीशियस होते हैं मतलब वो एक्सपेंसिव मिनरल्स हैं जिनको कि हम गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम कहते हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर. Yes, ma'am. अब नॉन मेटालिक Yes, मिनरल्स ma'am. सॉफ्ट मिनरल्स होते हैं जिसको कि हम माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन इन सब में कैटेगराइज करते हैं. ठीक है. Yes, ma'am. जब हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, आपकी बुक में ये बना होगा, आप देख लीजिएगा. एनर्जी रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज जो है 2 तरीके के होते हैं. एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल, या ये कह लो रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल. ठीक है. Okay, ma'am. अगर हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि एक बार यूज करने के बाद एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं. चैप्टर 1 में जब हमने रिसोर्सेज पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कि रेन्यूएबल होते हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन रेन्यूएबल होते हैं. रिसोर्सेज सारे रेन्यूएबल होते हैं, बट अगर हम टाइम स्पैन को बीच में लगा दें, अगर हम टाइम पीरियड उसके अंदर लेके आए तो रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल वो हो जाते हैं. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उसको हम रिन्यू कर सकते हैं, और कुछ होते हैं जिनको हम नहीं कर सकते हैं. जैसे कोल हुआ, आपका पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस हुआ, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको बहुत समय लगता है दोबारा से बनने में. ठीक है. तो इसीलिए ये कैटेगराइज होते हैं एज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज या कन्वेंशनल रिसोर्सेज. अगर हम रेन्यूएबल की बात करते हैं तो रेन्यूएबल और या फिर उसको कह लो नॉन कन्वेंशनल, तो उसमें आते हैं आपके विंड, बायोगैस, टाइडल, जियोथर्मल, सोलर. ये सारी एनर्जी जो है आपकी ये नॉन कन्वेंशनल यानी कि रेन्यूएबल में आती है. ठीक है. ठीक. Okay, ma'am. अगर हम अकरेंस ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स का जो अकरेंस है वो कई तरीके से होता है. जो हमने अभी पहले वाली स्लाइड पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं इनमें भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं. उसके बाद आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उनमें भी मिनरल्स पाए जाते हैं. फिर आपका जो डिकम्पोज्ड सरफेस रॉक्स होती हैं उनमें भी मिनरल्स पाए जाते हैं. एलुवियल डिपॉजिट्स जो होते हैं उनमें भी मिनरल्स पाए जाते हैं, और ओशन वाटर में भी मिनरल्स पाए जाते हैं. अगर हम बात करते हैं ओशन वाटर की, तो ओशन वाटर में आपको मैग्नीशियम, ब्रोमाइन और सॉल्ट मिलता है ना. Yes, ma'am. मिलता है कि नहीं? Yes, ma'am. राइट. और अगर आप एलुवियल डिपॉजिट्स की बात करते हो तो आपको एलुवियल डिपॉजिट जो कि अमूमन जो आपके वैली के जो फ्लोर्स होते हैं, मतलब जो घाटी के नीचे वाला हिस्सा और पहाड़ों के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जहाँ पे पानी के इरोजन से, पानी से जो रॉक्स, बड़ी बड़ी रॉक्स जो इरोड हो जाती हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो नीचे आके डिपॉजिट हो जाते हैं. उनके अंदर भी आपको गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम जो है ये इनमें आपको मिल जाता है. आई होप आई एम क्लियर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर हम
अगर हम डिकम्पोज्ड रॉक सरफेसेस की बात करते हैं तो डिकम्पोज्ड रॉक सरफेसेस में हमें रेजिडुअल वेदर्ड मटेरियल मिलता है, जैसे बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट बॉक्साइट एक और है ना, जिससे हमें क्या मिलता है, बॉक्साइट से Yes, ma'am. Right. क्या मिलता है बॉक्साइट से? Ma'am, silver. एल्यूमिनियम मिलता है Ma'am, बेटा। sorry, aluminium. हाँ, Aluminium. एल्यूमिनियम मिलता है। वेरी गुड, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then coming to sedimentary rocks, sedimentary rocks जो होती हैं वो हमारी लेयर्ड रॉक्स होती हैं। तो जो उनके जो रिवर बेड्स की जो रिवर बेड्स या ओशन बेड्स जो होते हैं उनके लेयर्स में हमें कोल, आयरन ओर, जिप्सम, पोटैश, सोडियम, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स के डिपॉजिट्स में हमें मिलता है। ठीक है, कमिंग टू इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये जो दो रॉक्स हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ मिनरल्स हमें मिलती है, जो कि छोटे अकरेंसेस यानी कि वेन्स होती हैं उनमें होता है, और जो लार्ज अकरेंसेस होती हैं जिनको हम लोड बोलते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, Yes. कह रहा है कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं इनके अंदर मिनरल्स तब फॉर्म होते हैं लिक्विड या गैसियस फॉर्म में, जब ऊपर से फोर्स आके इन कैविटीज के थ्रू अर्थ क्रस्ट में जो है वो एंटर कर जाता है। ठीक है, टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सारे के सारे जो हैं आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं एज मिनरल्स। आई होप दिस मच इज क्लियर एंड अंडरस्टूड। Yes. Got it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो वेरी गुड। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में एनीथिंग टू बी एक्सप्लेन? No, ma'am. ठीक है, No, वही, ma'am. ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज आर नॉन रेन्यूएबल, वो कह रहा है क्योंकि continued extraction of ores lead to increasing costs as mineral extraction comes from greater depths along with decrease in quality. Concerted efforts has to be made in order to use our mineral resources. प्लान और सस्टेनेबल मैनर में इनको यूज करना पड़ता है। अगर आप अनप्लान तरीके से इसको इस्तेमाल करोगे तो ये वेस्ट ज्यादा होंगे बजाय इनको काम में लाने के। और हमें बहुत बढ़िया तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज करना होता है जिससे कि हम लगातार लो ग्रेड ओर्स को भी जो है कम खर्च में बेटर तरीके से यूज कर सकें। ठीक है, हमें ऐसे वेज लाने पड़ेंगे, अडॉप्ट करने पड़ेंगे जिनसे इन मेटल्स की रिसाइकलिंग, ये जो स्क्रैप मेटल्स होते हैं या इनकी जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनको हम कंजर्व करके अपने फ्यूचर मिनरल्स को प्लस कर सकें। ठीक है, चलिए रीड नेक्स्ट हु विल Ma'am, रीड? may I? लेट अस मेक इशिका रीडिंग। इशिका रीड बेटा। Ma'am, Ishika left. Okay, Ishika left. So let us have Bhumika reading. Ma'am. भूमिका पढ़ो बेटा। भूमिका पढ़ो। अजीत पढ़ो। Nobody wants to read. Ma'am, may I? Ma'am, अजीत पढ़ो बेटा। PPT on the group. हाँ, Ma'am, please send this PPT on the group. उससे क्या होगा? Nothing, ma'am. पढ़ो, चलो पढ़ो बेटा। Ma'am, I can't see the screen. हर्ष तोमर पढ़ो आप बेटा। Ma'am, let them read. Ferrous minerals, non-ferrous minerals. Weather condition is Non-metallic minerals, rock minerals. Ferrous minerals account for about 3/4 of the total value of the production of metallic minerals. They provide a strong base for the development of metallurgical industries. मेटल Two बेस्ड types of ferrous. होते हैं, ठीक है।
मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है उनको मेटलॉजिकल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। Okay, ma'am. पढ़ो पढ़ो। Two types of ferrous minerals are iron ore and manganese. Very good. Next, continue. Iron ore is the basic mineral and the backbone of the industrial development. India is rich in good quality iron ores. Magnetite is the finest iron ore. Magnetite is the finest iron ore with a very high content of iron up to 70%. Yes. Hematite ore is the most important industrial iron ore in terms of the quantity used, but has a slightly lower iron content than magnetite, 60 to 50 to 60%. Very good. अब माइनिंग ऑफ आयरन ओर पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा माइनिंग ऑफ आयरन ओर? मैं चलो, मैं कौन है ये? ज़ैनब? माहिन? माहिन। चलो माहिन पढ़ो बेटा, पढ़ो माहिन जल्दी पढ़ो। Mining of iron ore, Orissa, Jharkhand belt. Hematite iron ore is mined in Goa and Noamundi. Durg, Western Chandrapur belt lies in Chhattisgarh and Maharashtra. Iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea via Visakhapatnam, Port Bareilly, Belri, चित्रदुर्गा, Bileri, Chitradurga, Chikmagalur, Tumkur belt in Karnataka has large reserves of iron ore. The ore is transported as slurry through a pipeline to port near Mangalore. Maharashtra Goa belt includes the state of Goa and Ratnagiri district of Maharashtra. Iron ore is exported through Marmagua port, other Orissa, Chhattisgarh, Goa, Jharkhand and Karnataka. Mayorbanj, Durg, Beladila, Kudermukh. ठीक है, ठीक है, पढ़ो। Manganese is mainly used in the manufacturing of steel and ferro-manganese alloy. Nearly 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of steel. It is also used in manufacturing bleaching powder, insecticides and paints. Odisha is the largest producer of manganese ores in India. It accounted for 1/3 of the country total production in 2000 to 2001. Orissa, Madhya Pradesh and Karnataka. ठीक है, then next, mica. Mica is a mineral made up of series of plates or leaves, It is split so easily into thin sheets. These sheets can be so thin that 1,000 can be layered into a mica sheet of a few centimeters high. Mica can be clear, black, green, red, yellow, or brown due to its excellent dielectric strength, low power, loose factors, insulting properties, and resisting to high voltage. Insulating beta, insulting नहीं, insulating properties. Insulating properties and resistance to high voltage. Mica is one of the most indispensable mineral used in
electric and electronic industries. Mica deposits are found in the northern edge of Chota Nagpur Plateau, Koderma, Gaya, Hazaribagh belt of Jharkhand is the leading producer in Rajasthan. The major mica producing area is around Ajmer, Nellore belt, mica belt of Nellore mica belt of Andhra Pradesh. Nellore mica belt of Andhra Pradesh is also an important producer in the country. Bewar, Rajasthan. ठीक है, बेवर राजस्थान. ये मैप है आपका, ये भी मैप है. लाइमस्टोन. मैम एक बार फिर से खोल दीजिए मैम पहला वाला मैप. चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया? यस मैम. दूसरा वाला ये वाला भी ले लो. मैम डन बोथ. डन. चलो लाइमस्टोन. कैन वी हैव अजीत रीडिंग? यस मैम. अजीत पढ़ो बेटा. Limestone. Limestone is found in association with rocks composed of calcium carbonates or calcium and magnesium carbonates. Second, it is found in sedimentary rocks of most geological formations. Third, limestone is the basic raw material for the cement industry and essential for smelting iron ore in the blast furnace. Fourth, found in Karnataka and Andhra Pradesh. ठीक है, continue. Conventional source of energy. First, firewood, coal, petroleum, cattle dung, cake, electricity, natural gas. Non-conventional source. Solar, wind, tidal, geothermal, biogas, and atomic energy. ठीक है, पढ़ो. Coal, petroleum, natural gas, electricity. First, in India, coal is the most abundantly available fossil fuels. There are three types of coal. Lignite, low-grade brown coal, which is soft with high moisture content, found in Newbilly in Tamil Nadu, used to generate electricity. What is this? Bituminous? बिटमिनियस एक आपका कोल की वैरायटी होती है बेटा. पढ़ो. Yes, ma'am. Bituminous most popularly used coal used in smelting irons in blast furnaces. Anthracite in blast furnaces. Anthracite, high quality hard coal. Metallurgical coal found at Metallurgical coal found at Dumedar Valley, West Bengal and Jharkhand. Fifth, important coal fields. Jharia, Raniganj and Bokharo. Fourth, fifth, sixth, Godavari, Mahanadi, Sun and Varda valleys are also contain coal deposits. Very good. Territory coals. Northern East states. Tertiary coals. Tertiary coals. Sorry, ma'am. Tertiary coals. Northeastern states. Next. Ma'am, done. हाँ, ये मैप है आपका एनर्जी रिसोर्सेज का. ये आयरन ओर माइंस एंड माइका माइंस, इंपॉर्टेंट मिनरल्स. ठीक है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस. अभी आप पढ़ो पेट्रोलियम. कैन वी हैव आर.एन. मौर्य रीडिंग? चलो पढ़ो पढ़ो. Found in the rocks of tertiary age, oldest oil field in India. First, 63% petroleum comes from Mumbai High. Second point, 18% from Gujarat's Ankleshwar oil field, and third, 16% from Assam Digboi. Fourth point, Naharkatia and Moram Ugrijan oil field. Ugrijan oil fields, Digboi, Assam, Narkatia, Mumbai High, Behsan, Kalor.
base in Kalur. Petroleum refineries act as a nodal industry for synthetic